garrison there was food for 1,000 soldiers for 1 month. After 10 days, 1,000 more soldiers joined the garrison. How long would the soldiers be able to carry on with the remaining food? 1,000 soldiers हैं और उनके पास 30 दिन का खाना है for 1 month. So means 30,000 फूड है, पैकेट है, कह सकते मीन्स 1 डे का मील है. सो 30,000 मील्स खत्म हो गए और 10 दिन बाद 1,000 मोर सोल्जर्स ज्वाइंड, तो 1,000 की जगह 2,000 हो गए. तो 10 दिन में जो फूड खत्म हो गया वो हुआ 1,000 गुना 10 मीन्स 10,000 खत्म हो गए मील्स और पैकेट्स. पर डे 1 पैकेट या 1 मील लगता है, तो बाकी बचा 30,000 माइनस 10,000 मीन्स 20,000 बच गया अभी. और 10 डेज बाद 1,000 और आ गए तो 2,000 हो गए. अब 20,000 अपॉन 2,000 तो ये 10 डेज और चलेगा. सो आंसर इज डी. आंसर इज डी. Out of 120 applications for a post, 70 are male and 80 have driver's license. What is the ratio between the minimum to maximum number of males having driver's license? So, out of 120 applications for a post, 70 are males and 80 have driver's license. What is the ratio between the minimum to maximum number of males having driver's license? तो 120 में से 70 मेल हैं, तो फीमेल कितनी हुई? 120 माइनस 70 50 फीमेल हो गई. और ड्राइविंग लाइसेंस कितने के पास है? 80 के पास. तो ऑब्वियसली कुछ फीमेल के पास भी है, बिकॉज मेल्स आर ओनली 70. अब कितनी फीमेल के पास है पता नहीं. इट मे बी मोर देन 10 बिकॉज 80 माइनस 70. सो मैक्सिमम और मिनिमम निकालना हो हमें, तो मिनिमम के लिए सब फीमेल पर होगा, तो मेल पर मिनिमम होगा. तो 30 मेल पर है. और मैक्सिमम के लिए कि मेल में मैक्सिमम हो तो 70 सबके सब लाइसेंस रखेंगे, क्योंकि 80 इज मोर एंड 10 फीमेल के पास होगा. तो 70 मेल हैव लाइसेंस. ये मैक्सिमम का केस है. मिनिमम के केस में 30 है. सो मिनिमम टू मैक्सिमम होगा 30 अपॉन 70. So 3:7. So C is the answer. A sum of rupees 700 has to be used to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, what is the value? Least value of the price. So here total 700 rupees are there. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे x से और उससे नेक्स्ट वाला ज़्यादा 20, तो इससे ये 20 कम हो गया. पहला x है, दूसरा x प्लस 20 है, तो ये 20 कम हो गया. देन x प्लस 40, देन x प्लस 60, देन x प्लस 80, x प्लस 100 एंड x प्लस 120 will give 7 prices. So 7x plus this amount 120 plus 100 plus 80 plus 60 plus 40 plus 20 is equal to 700. So this is 120 and
60, 180 plus 60, 240, 240 plus 80, 320 plus 100, 420. So 7x is 700 minus 420. So we get, so 7x is 280, x is 40. So answer is B. In a rare coin collection, there is one gold coin for every 3 non-gold coins. 1, then 3, then 1, like this. 10 more gold coins are added to the collections, and the ratio of the gold coins to non-gold coins would be 1:2. Based on the information, the total number of coins in the collection now becomes, गोल्ड अगर 1 है तो 2 नॉन गोल्ड है, और हर 3 पर एक नॉन गोल्ड है, और 10 तो जोड़े गए हैं, 10 इज देयर, और अगर एक था 3 ये थे तो 11:3 होगा. देन वी नीड टू हैव, दिस इज 1:2. तो सपोज x है 10 प्लस x, गोल्ड, और x के लिए 3x नॉन गोल्ड होंगे. तो अभी नए हो गए 10 प्लस x और ये 3x ही रहेगा. ये इज इक्वल टू 1:2. So 20 plus 2x is equal to 3x. So x is equal to 20. X is 20, therefore we need to find out total number of coins in the collection. तो अगर x 20 है तो 3x हो गया 60, और 10 इसमें और जोड़े गए, तो this will be the total number of coins, which is 90. So answer is A. For a charity show, the total tickets sold were 420. Half of these tickets were sold at the rate of ₹5 each, 1/3 at the rate of ₹3 each, and rest for ₹2 each. What was the total amount received? So total tickets sold are 420. Half of these tickets were sold at the rate of ₹5, means 210 at the rate of ₹5. 1/3 means 140 at the rate of ₹3, and rest, so rest will be 420 minus 210 plus 140. 420 minus, this will be 70 for ₹2. So we get 210 into 5 is, and here we get and this is so total is ₹1610. So answer is C. Two cars
start towards each other from two places A and B, which are at a distance of 160 km. They start at the same time 8:10 am. If the speed of the cars are 50 km per hour and 30 km per hour respectively, they will meet each other at, so ये A है, प्लेस B प्लेस, और इससे ये इधर चलती है, इससे ये स्पीड है इसकी 50 km per hour and the B is having 30 km per hour and the distance is 160 kilometers. तो मान लीजिए x डिस्टेंस पर मिलते हैं और दूसरे के लिए होगा 160 माइनस x डिस्टेंस, तो टाइम तो दोनों को टी लगेगा, सेम टाइम पर मिलेंगी, सो इट विल बी 50 इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस x, और दूसरे के लिए होगा 30 इंटू टी इज इक्वल टू 160 माइनस x. अब दोनों को ऐड करने तो कैंसिल हो गया, 80 टी इज इक्वल टू 160, टी इज इक्वल टू 2 आवर्स. तो 8:10 पर चलें तो 2 आवर्स और जुड़ जाएगा, तो 10:10 AM. सो आंसर इज ए. A worker reaches his factory 3 minutes late if his speed from his house to the factory is 5 km per hour. If he walks at a speed of 6 km per hour, then he reaches the factory 7 minutes early. The distance of the factory from his house is, मान लीजिए टी टाइम में पहुंचता है वो ऑफिस वर्कर, लेकिन अभी लेट पहुंचा है, तो जो टी टाइम है वो एक्चुअल टाइम है जिसमें पहुंचना चाहिए. 3 मिनट लेट है तो इसे आवर में बदलेंगे तो 60 इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर. दूसरी बार में पहले पहुंच गया तो टी में पहुंचना चाहिए जो सही समय, उसमें से कम हो गया 7/60 इज इक्वल टू डिस्टेंस तो उतनी रही लेकिन स्पीड बदल गई 6 किलोमीटर पर आवर. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, सो ये टी कैंसिल हो गया. 3/60 प्लस 7/60 इज इक्वल टू, ये हो गया d/5 माइनस d/6, तो 7 और 3 10, 10/60, क्योंकि एलसीएम तो 60 रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ एलसीएम 30 हो गया, 6 माइनस 5d, सो 1d/30 इज इक्वल टू 1/6. सो d इज इक्वल टू 30/6 मीन्स 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर की दूरी पर ऑफिस है. सो आंसर इज सी. As per agreement with a bank, a businessman had to refund a loan in some equal installments without interest. After paying 18 installments, he found that 60% of his loan was refunded. How many installments were there in the agreement? So 18 installment, देखते हैं कि 18 इंस्टॉलमेंट दे दी हैं और 60% लोन रिफंड कर दिया गया. सो 60% ऑफ एक्स अमाउंट इज 18. 60/100 एक्स इज इक्वल टू 18. तो 18 इंस्टॉलमेंट है, ये 60% था, सो दिस विल बी 3/5. x is equal to 18, so x is equal to 6 into 5 means 30. So answer is
C. Cow costs more than 4 goats but less than 5 goats. If a cow costs between rupees 600 and 800, which of the following is most valid? Conclusion. A cow costs more than this, less than this, range is this, and two ranges have been given. गोट की कॉस्ट जो है 600 रुपीज़ है, तो काऊ की कॉस्ट 4 गोट से ज़्यादा है 2400 एंड 5 गोट से कम है 3000 से कम है। और गोट के प्राइस भी चेंज हो रहे हैं 600 से 800। सो अगर 800 है तो उस केस में कितनी होगी ये 4 गोट 3200 एंड 5 गोट होंगी तो 4000। सो ये रेंज आ गई। तो 24,000 से लेके 4,000 के रेंज में हो सकती है। सो आंसर इज डी। Cities A and B are 360 kilometers apart. A car goes from A to B with a speed of 40 kilometers per hour. So A से B तक कार जा रही है जो कि 360 किलोमीटर अपार्ट है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस आती है तब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। एवरेज स्पीड निकालनी है कार की। वेलोसिटी है स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 360 प्लस 360, एक तरफ 360 है तो दूसरी तरफ भी, अपॉन टोटल टाइम। तो जाते वक्त टाइम है 360, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अपॉन 40 प्लस दूसरी बार है 360, डिस्टेंस 360 है और वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमें एवरेज स्पीड दे देगा। सो 360 अगर हम कॉमन लें तो ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 1/40 प्लस 1/60, बिकॉज कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। सो दिस इज, इसका एलसीएम ने 40 एंड 60 का, वो होगा 120 और 3 + 2, सो ये ऊपर चला जाएगा 120। सो 2 × 120/5, 5 से इसे डिवाइड किया 24 टाइम्स, सो 48 किलोमीटर पर आवर एवरेज है स्पीड। सो आंसर इज बी। The monthly incomes of Peter and Paul are in the ratio of 4:3. Their expenses are in the ratio of 3:2. If each saves 6,000 rupees at the end of the month, their monthly incomes respectively are in rupees. So 3:2 तो एक्सपेंस है एंड सेविंग्स इनकम्स हैं 4:3। तो इनकम इज इक्वल टू 4x/3y 3x। ये अगर हम टोटल इसका निकालें
और दूसरे का है 3y/2y, ये एक्सपेंस है। डिफरेंस निकालें अगर हम इनका तो 6000 ही आता है। 4x - 3y 6000 क्योंकि जो बचा है वो सेविंग है इनकम में से, और दूसरा है 3x - 2y = 6000। तो इनकम = सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, और कह सकते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, रिमेनिंग इज सेविंग। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों इक्वल हैं। सो 4x - 3y = 3x - 2y। सो x = y इक्वल आ रही हैं। अब x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम इसमें सपोज रखते हैं दोनों इक्वल हैं। सो 4x - 3x = 6000। सो x = 6000, y भी 6000 हो गया, = y। हमें निकालनी है इनकम। इनकम ये है 6 × 4 मीन्स 24,000 and 6 × 3 is 18,000. So 24 and 18, A is the answer. Two pipes A and B can independently fill a tank completely in 20 and 30 minutes. If both the pipes are opened simultaneously, how much time they will take to fill the tank completely? तो यहाँ अगर हम देखें तो A और B इंडिपेंडेंटली 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स में भर देते हैं। तो 1 मिनट में इसने कितना भरा, 1/20 पार्ट, और B ने भरा 1/30 पार्ट। दोनों को खोल दिया गया। सो एक समय में दोनों भर रहे हैं और टोटल वॉल्यूम हो गया 1 का 1/20 भर देता है A एंड 1/30 भर देता है B। तो 1 को अगर हम डिवाइड करें इससे, then we will have time. 1 is the volume and this is the volume filled by A, this is the volume. So this will be LCM is 20 × 30 and यहाँ हो गया 30 + 20 and इसे 1/, करेंगे, so this will be 1/50 and this becomes 600. So this is 600/50. So 12 मिनट्स में भर देगा। So answer is B. A person ordered 5 pairs of black socks and some pair of brown socks. X पेयर ब्राउन है और 5 ब्लैक है। The price of black pair was thrice of that brown pair. While preparing the bill clerk interchanged the number of black and brown pairs by mistake, which increased the bill by 100%. What was the number of pairs of brown socks in the original order? तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि जो ब्राउन है X, उसका कॉस्ट Y है, तो पर पेयर, तो X पेयर की कॉस्ट कितनी होगी, XY, और जो ब्लैक है उसकी कॉस्ट थ्राइस ऑफ ब्राउन पर पेयर। सो 5 × 3y, एक की 3y है और 5 की 5 × 3y प्लस XY, दिस मच वाज द कॉस्ट। लेकिन बाई एरर y और ये 3y एक्सचेंज हो गए। सो y ×
5 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू 3y। तो डिफरेंस कितना आया, दिस माइनस दिस, डिफरेंस इज 5y प्लस 3xy माइनस 15y, दिस वैल्यू 5 इंटू 3y प्लस xy। ये डिफरेंस आ गया दोनों की वजह से। अब ये डिफरेंस कितने में है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, दैट वी आर नॉट सेइंग राइट नाउ। जो कि होना चाहिए था 5 इंटू 3y मीन्स 15y प्लस xy में जो डिफरेंस आ गया वो इतना आ गया। तो 100 में कितना होगा, 100 में होगा दिस अपॉन दिस इंटू 100, 5y प्लस 3xy माइनस 15y माइनस xy अपॉन 15y, दिस वैल्यू प्लस xy इंटू 100, और ये कितना है 100% है तो इज इक्वल टू 100। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 गया तो ये 10 हो जाएगा। सो दिस इज 2xy माइनस 10y अपॉन 15y प्लस xy इंटू 100 इज इक्वल टू 100। तो ये 100 कैंसिल हो गए, इट मीन्स 2xy माइनस 10y इज इक्वल टू 15y प्लस xy। तो अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें देन 25y इज इक्वल टू xy, 25y इज इक्वल टू xy। तो y कैंसिल हो गए तो x इज इक्वल टू 25 आ गया। सो वी गॉट द वैल्यू x इज 25 एंड यही हमें निकालना था क्योंकि x जो है ब्राउन का पेयर है। सो D इज द आंसर। Two equal glasses of same type are respectively 1/3 and 1/4 full of milk. They are then filled up with water and the contents are mixed in a pot. What is the ratio of milk and water in the pot? So इसमें हुआ कि 1/3 था और ये 1/4 था, तो इसमें जो रिमेनिंग है वो हुआ 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3 वाटर हो गया। और इसमें कितना हुआ 3/4, क्योंकि ये भी 1 माइनस 1/4 होगा तो ये हो गया 3/4 वाटर हो गया इसमें, और इसमें 1/3 वाटर हो गया। अब दोनों को एक हमने मिक्स कर दिया, तो वाटर कंटेंट तो मिल्क एंड वाटर हमें अब निकालना है। तो कुल मिला के मिल्क है 1/3 प्लस 1/4 विच इज 12 एंड 4 प्लस 3 7/12, ये तो मिल्क है। और वाटर कितना हुआ, वाटर हुआ 2/3 प्लस 3/4, तो यहाँ भी 12 आ गया, 8 प्लस 9 17/12। तो हमें निकालना है मिल्क एंड वाटर का, तो 7/12 अपॉन 17/12, so this will cancel out, 7 is to 17. A is the answer. Candidates in a competitive examination consisted of 60% men cleared the qualifying test and entered the final test where 80% men and 70% women were successful. Which of the following statements is correct? Success rate is higher for women. Overall success rate is below 50%.
more men cleared the examination than women, both A and B above are correct. तो पहले हमारे पास मान लीजिए 100 हैं, उसमें 60 मैन हैं एंड 40 वीमेन हैं. इन 60 का 70% क्वालिफाइंग में क्लियर हुआ, 60 का 70% एंड 40 का 75% क्लियर किया क्वालिफाइंग के लिए. तो 100 में 70, तो 60 में 70 अपॉन 100 इंटू 60 तो 42 हो गया. और अगर हम देखें 100 में 75 तो 40 में 75 अपॉन 100 इंटू 40 में इंटू 40, सो दिस विल बी 30. सो 30 वीमेन एंड 42 मेन क्वालिफाइंग में चले गए. अब इसका भी 80% जो है मेन ने क्वालिफाई किया, तो 100 का 80 एंड 72 का 80 अपॉन 100 इंटू 42. इसी तरह 30 का 70%, तो दिस विल बी 30 इंटू 70 अपॉन 100. 70% निकालना था, सो 21 तो वीमेन हो गई. सो ये वैल्यू डेसिमल में आएगी. which is 33.6. अब 33.6 तो मैन नहीं हो सकते हैं, तो इट विल बी 33. सो 33 मैन ने किया और 21 वीमेन ने किया. सो सक्सेस रेट इज हायर फॉर वीमेन. नो, overall success, more men cleared the examination than women. 33 men ने किया, 21 women ने. तो ये वैसे करेक्ट लगता है स्टेटमेंट, which is C, but with respect to the initial data we should consider that also that 60 थे men और women 40 थे. तो वो तो परसेंटेज से भी हमें दिखाई दे रहा है कि more men has cleared the examination than women. A तो क्लियर है ही नहीं, सक्सेस रेट इज हायर फॉर women, ये तो करेक्ट नहीं है. ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, बिकॉज अगर हम 80% और 70% देखें और यहाँ पर ये 33 आया, तो 60 का भी ये 50 से अबव हो गया. 60 अगर मैन थे तो 33 क्लियर हो गए, और यहाँ पर 40 में से 21 हुए, तो 33 प्लस 21 इज 4 एंड 5, तो ये 50% से अबव आ जाता है. सो बी भी रॉन्ग है, तो डी ऑलरेडी रॉन्ग हो गया. तो C इज द आंसर. इस हिसाब से भी हम कह सकते हैं in a 500 meter race B starts 45 meter ahead of A. In a 500 meter race B starts 45 meter ahead of A. Meter race. So this distance is 500. B starts 45 meter ahead of A. तो मान लीजिए A यहाँ पर है, ये पूरी 500 है, we stretch it out, और यहाँ से B ने शुरू किया, और ये डिस्टेंस जो है 45 मीटर है. एंड A wins the race while B is still 35 meter behind. A तो यहाँ पहुँच गया, लेकिन B यहाँ पर है और ये 35 मीटर है. What is the ratio of the speeds of A to B assuming that both start at the same time? तो अगर सेम टाइम पर शुरू हुए, सेम टाइम पर रुके, तो टाइम तो सेम हो गया. सो T1 इज इक्वल टू T2, T1 A के लिए, T2 B के लिए. कुल डिस्टेंस 500 है, तो A ने तो 500 कवर की, तो A के लिए T1 है, तो
डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v1, ये तो हो गया ए के लिए। बी के लिए हुआ, बी ने इधर से 35 कम किया, यहाँ से भी 45 कम किया। सो दिस विल बी द डिस्टेंस इज 500 माइनस 45 एंड माइनस 35, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उसने कुल ये डिस्टेंस कवर की जो कि है 35 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 45 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपॉन v2। सो दीज आर इक्वल टू t1 t2, दिस इज t1 एंड दिस इज t2 और बोथ आर इक्वल। तो ये हो गया 500 अपॉन v1 इज इक्वल टू 500 में से 80 गए, सो 420 अपॉन v2। So v1 upon v2 is 500 upon 420. So 25 is to 21 is the answer. A is the answer. In a test, a candidate attempted only 8 questions and secured 50% marks in each of the questions. If he obtained a total of 40% in the test and all questions in the test carried equal marks, how many questions were there in the test? तो मान लीजिए अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चंस थे, तो 50% मार्क्स, उसे 4 मार्क्स मिले। और 4 मार्क्स कितने हैं? जो x है, जो टोटल क्वेश्चन है, तो x ही मार्क्स हुए क्योंकि हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो इसका 40% इज इक्वल टू 4 है, इतने उसे ऑब्टेन हुए। तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। 10 क्वेश्चंस थे। आंसर इज बी। An automobile owner reduced his monthly petrol consumption when the prices went up. The price consumption relationship is as follows. An automobile owner reduced his monthly petrol consumption when the prices went up. The price consumption relationship is as follows. Price in liters is given, then monthly consumption in liters. So price rupees में है per liter, then monthly consumption in liters. If the price goes up to rupees 80 per liter, his expected consumption in liters will be, तो यहाँ देखें 40, 60, 50, 48, 60, 40 and 75 and 32। अब 80 हो जाए तब क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो अगर हम देखें एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो अगर हम चेक करें क्या ये सेम है, क्योंकि रिड्यूस किया है, तो पहले का हो गया 40 इंटू 60 2400, दूसरे में हो गया 50 इंटू 48, तो ये भी जो है वैल्यू आई 2400। देन फिर 60 इंटू 40, ये भी 2400 है। 60 इंटू 40 ये भी 2400 है। इसके बाद 75 इंटू 32, दिस ऑल्सो कम्स 2400 एंड देन लास्ट इज 80। तो ये हम 2400 को 80 से डिवाइड करें तो हमें कंजम्पशन मिल जाएगा। सो 30 लीटर्स, ए इज द आंसर। Two numbers x and y are respectively 20% and 28%
लेस देन द थर्ड नंबर। तो मान लीजिए z जो थर्ड नंबर है उसे हम 100 मान लेते हैं, ये z की वैल्यू है। बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर y लेस देन द नंबर x। तो ये 20% कम है, मीन्स z को 100 लिया तो ये 80 हो गया x की वैल्यू, x इज 80। अब हम y लेते हैं, y कितना है, z माइनस 28, तो 100 माइनस 28 इज 72। अब हमें निकालना है बाई व्हाट परसेंटेज इज द नंबर y है 72, x है 80, 80 माइनस 72 इज 8। अब परसेंटेज निकालनी है, तो 80 में जो कम है लेस है y, वो 8 लेस है। तो 100 में कितना लेस होगा, 8 अपॉन 80 इंटू 100। सो ये कैंसिल हो गया 8 से, तो 10% कम होगा। सो आंसर इज बी। The monthly average salary paid to all the employees of a company was rupees 5,000. The monthly average salary paid to male and female employees was rupees 5200 and rupees 4200 respectively. Then the percentage of males employed in the company is, so यहाँ पर rupees 5000 जो है मंथली एवरेज सैलरी है, और मेल्स को दी गई है 5200, मैन को एंड फीमेल्स को 4200। तो मान लीजिए x मेल है प्लस y फीमेल है, इसे टोटल नंबर x प्लस y से डिवाइड किया तो आ गया 5000। So this gives 5000x plus 5000y is equal to 5200x plus 4200y। हम इसे इधर ले आए, so माइनस 200x इज इक्वल टू, इसे इधर ले गए, दिस इज माइनस 800y। सो रेशियो आ जाएगा 4 x upon y is, so y is equal to x upon 4। तो अगर हम जो गिवन डेटा है उसको इसमें प्लग इन करें, तो अगर हम x को 75 कहें then it will not come 100%। अगर 80 कहें तो 80 अपॉन 4 मीन्स 20, और 20 का 4 गुना 80 विच इज गिविंग अस 100%। अगर हम 85 लें, 85 अपॉन 4, then also it is not coming in integral numbers। and another way, जो भी नंबर आएगा से 2 एंड यहाँ 21, ये 100 नहीं देगा हमें। देन 90 में 4 से डिवाइड करें तो ये भी 100 से ज़्यादा देगा। एक ही नंबर है जो कि 80 से सेटिस्फाई कर रहा है। एक तरीका तो ये हुआ जब हमारे पास ये निकल आया कि x इज इक्वल टू 4y है, और दूसरा तरीका हम इसमें ये ले सकते हैं कि हम लिखें रिक्वायर्ड परसेंटेज इज x अपॉन x प्लस वाई इंटू 100, यही हमें निकालना है। अब x अपॉन x प्लस वाई कितना है, x अपॉन 4 इंटू 100। दूसरा हमने ये जो गिवन आंसर था उसे रख कर देख लिया, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी 4x अपॉन 5x इज इक्वल टू इंटू 100।
तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 4/5 इंटू 100 हुआ 80%। तो ये दूसरा तरीका है। सो आंसर इज बी। In a class there are 18 very tall boys. If these constitute 3/4 of the boys and the total number of boys is 2/3 of the total number of students in the class, what is the number of girls in the class? In a class there are 18 very tall boys. If these constitute 3/4 of the boys and the total number of boys is 2/3 of the total number of students in the class, what is the number of girls in the class? तो ये जो 18 है ये 3/4 बॉयज़ का, तो मान लीजिए x बॉयज़ हैं, x का 3/4 करें तो वो 18 के इक्वल है। तो यहाँ से x जो है 24 आ गया। सो 24 बॉयज़ हैं और टोटल बॉयज़ जो हैं वो 2/3 ऑफ द टोटल क्लास, मान लीजिए टोटल क्लास y है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं, इज इक्वल टू 24 हो गया। तो y इज इक्वल टू 24 इंटू 3/2, तो ये हो गया 12 इंटू 3, 36 टोटल स्ट्रेंथ है क्लास की। अब टोटल स्ट्रेंथ में से बॉयज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो गर्ल्स की संख्या आ गई 12। सो आंसर इज बी। Anita's mathematics test had 70 problems carrying equal marks, that is 10 arithmetic, 30 algebra, 30 geometry. So 10 arithmetic, 30 algebra and 30 geometry. Although she answered 70% of the arithmetic, 40% of algebra and 60% of the geometry problems correctly, she did not pass the test because she got less than 60% marks. The number of more questions she would have to answer correctly to earn 60% passing marks is, तो 10 का 70% हो गया 7 क्वेश्चंस, 30 का 40% हो गया 12 क्वेश्चंस एंड 30 का 60% हो गया 18 क्वेश्चंस। तो उसने जो कुल आंसर किए वो 37 क्वेश्चंस किए और उसको पास करना था। ये सब करके उसको मार्क्स मिले लेस देन 60%। उसने 37 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन उसे कितने क्वेश्चन करने थे? अगर हम देखें 100% जो है 70 क्वेश्चन होता है, तो 60% कितना होगा? 70/100 इंटू 60। So this 30 gram of sugar was mixed in 180 ml water in a vessel A. 40 gram of sugar was mixed in 280 ml of water in vessel B, and 20 gram of sugar was mixed in 100 ml of water vessel C. The solution in vessel B is 30 gram sugar in 180 ml, then 40 gram in 280 and then 20 in 100। तो ये तो 20% हुई, परसेंटेज में निकालें। अब हम बाकी की परसेंटेज देख लें, उसी से हमें स्वीटनेस पता चल जाएगी। तो इसके लिए हुआ 180 में 30 है, तो 100 में कितनी है? 30/180 इंटू 100, और ये A की है, ये B की है और ये C की है। तो दिस कम्स 100/6, जो कि आएगी 116 पॉइंट समथिंग। यहाँ हम निकालेंगे तो ये आएगा 40/280 इंटू 100, 100/7। डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये कम होगा, 14 पॉइंट समथिंग, और ये 20। तो ऑब्वियसली
बी की सबसे कम है स्वीटनेस, बिकॉज कंसंट्रेशन उसी हिसाब से. सो बी की लेस देन दैट ऑफ सी, एज स्वीट एज सी, स्वीटर देन दैट ए. नो, ये भी ठीक नहीं है क्योंकि ए की 16 पॉइंट समथिंग है. स्वीटर देन दैट इन सी. सो डी इज द आंसर. देयर इज एन ऑर्डर ऑफ 19,000 quantity of a particular product from a customer. The firm produces 1,000 quantity of that product per day, out of which 5% are unfit for sale. In how many days will the order be completed? Order है 19,000 का, per day 1,000 बनते हैं, जिसमें 5% खराब हो जाते हैं. तो 5% कितना होगा? 5/100 into 1000. So this will be 50 आइटम खराब हो जाते हैं. अब हाउ मैनी डेज में ये कंप्लीट होगा? एक दिन में बेसिकली 950 ही बना. सो 950 से इसे डिवाइड कर देंगे. सो इट विल बी 20 डेज. 95 2 times 190 to 20 days. Answer is C. A person allows a 10% discount for cash payment from the marked price of a toy, and still he makes a 10% gain. What is the cost price of the toy which is marked ₹770? तो 770 का 10% हो गया 77 रुपए. 77 रुपीज वो डिस्काउंट दे देता है. इसका मतलब 770 में से 77 गए 693 रुपीज. अब हमें पता नहीं क्या कॉस्ट है, एक्स कॉस्ट है, उसमें उसने 10% डिस्काउंट जो दिया वो जोड़ लिया है. जो बेनिफिट है वो जोड़ लिया. 10% बेनिफिट हो गया. ये बराबर हुआ 693 के. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, x प्लस एक्स अपॉन 10, एलसीएम लिया इज इक्वल टू 693. एलसीएम लिया तो ये हो गया 10 एंड 10x प्लस एक्स इज इक्वल टू 693. 11x is equal to 6930. X is equal to divided by 11. 6930 upon 11. So this is 630. This is the answer. C is the answer. The average monthly income of a person in a certain family of 5 is ₹10,000. What will be the average monthly income of a person in the same family if the income of one person is increased by ₹1,20,000 per year? तो 5 लोग हैं और उनकी 10,000 है, तो ये हो गई 50,000 इनकम. अब एक व्यक्ति की 1,20,000 साल भर में बढ़ती है, मतलब 12 महीने से इसे डिवाइड करेंगे तो मंथली आ जाएगा. सो दिस विल बी 10,000. तो 50,000 पहले थी पूरे की, अब 10,000 और इसमें मंथली जुड़ गया अपॉन 5, मतलब कि 60,000 अपॉन 5 मीन्स 5 पीपल में 1000 इनकम है, तो मंथली इनकम हो गई, ये एवरेज है, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50,000. और एक व्यक्ति को 1,20,000 साल में बढ़ते हैं, मीन्स 12 मंथ्स में, तो इसे 12 से डिवाइड करके 1 महीने का निकालेंगे. सो दिस विल गिव अस 10,000. 10,000 रुपीज बढ़ गए. पहले थी 50,000 इनकम, इसमें 10,000 जोड़ दिए गए, इसे 5 से डिवाइड किया, मीन्स 60,000 अपॉन 5 is equal to 1200, means 12,000. So answer is A. W can do 25% of a work in 30 days. X can do 1/4 of the work in 10 days. Y can do 40% of the work in 40 days. And Z can do 1/3 of the work in 30 days. Who will complete the work first? 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4. ये करता है 30 दिन में, तो ये कुल कितने दिन लेगा? 30 into 4, 120 days. Now we come to this X. X is doing 1/4 days in 10.
तो ये कितने लेगा, 4 गुना दिन, 10 गुना 4, 40 days. Then we have Y. Y is doing 40% work in 40 days. तो 100% लेगा 100 days में. Need not to calculate even. 40% 40 days में, 100% 100 days में. Then we have Z. Z is 1/3 in 13 days. तो पूरे के लिए 3 गुना ज्यादा देगा, 13 into 3, 39 days. So minimum is this 39. So Z is the answer because X is taking 40 days. So minimum is 39. A and B walk around a circular park. They start at 8 a.m. from the same point in the opposite directions. A and B walk at a speed of 2 rounds per hour and 3 rounds per hour respectively. How many times shall they cross each other after 8 a.m. and before 9:30 a.m. तो एक ही सर्कुलर पार्क है, ए और बी यहाँ से चले हैं, एक इस डायरेक्शन में चला, एक इस डायरेक्शन में. So suppose A is in this direction, B is in this direction. This is the point P जहाँ से चले. Now A is walking 2 rounds per hour and B is walking 3 rounds per hour. अब 9:30 तक में कितना हुआ, 1.5 घंटा हो गया, because they have started at 8 o'clock. तो ये 3 सर्कल पूरे कर लेगा, ये 2 सर्कल पूरे कर लेगा. और फिर जो अगला आधा घंटा है उस आवर, तो 1.5 घंटे में कितने का लेगा, 3 राउंड. और बी जो है 3 राउंड ले रहा है, तो 1.5 घंटे में कितने लेगा, 3 and 1.5 और मीन्स 4.5 राउंड्स. तो ये 7 बार मीन्स 3 + 4.5, 7 बार ये क्रॉस करेंगे ईच अदर, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसीलिए ये 3 बार इधर जा रहा है और वो 4.5 टाइम्स इस साइड आ रहा है. तो 3, 3, 6 और उसी दौरान उसी टाइम पीरियड में ये 4.5 टाइम आ रहा है, तो प्लस 1.5 मोर, इट गिव 7.5, लेकिन 7 आएंगे. इसी को हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि जो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 2 + 3 राउंड, दैट इज 5 राउंड्स पर आवर. और फिर आधे घंटे में 5 का आधा होगा, तो 5 + 2.5 मीन्स 7.5. तो यहाँ भी वो 7 बार क्रॉस करेंगे ईच अदर. सो आंसर इज ए. राम एंड श्याम वर्क ऑन ए जॉब टुगेदर फॉर 4 days and complete 60% of it. Ram takes leave then and Shyam works for 8 more days to complete the job. How long would Ram take to complete the entire job alone? So यहाँ पर राम और श्याम दोनों ही साथ में कर रहे हैं और 60% कंप्लीट करते हैं. तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 40%. और वो छोड़ करके राम चले गए. श्याम ने 8 days में कंप्लीट कर दिया रिमेनिंग. 40% जो है 8 days में कंप्लीट हो गया. तो 1 day में कितना हुआ, 8 days में 40%. सो 1 day में 40/8, 5% काम किया श्याम ने. और यहाँ किया था 4 days. तो 4 days में श्याम ने 20% काम किया होगा. इसका मतलब रिमेनिंग वर्क राम हैज डन, टोटल वर्क इज 100, तो बाकी 40% राम ने किया इन 4 days. तो राम अगर 40% 4 days में कर लेता है तो 100% कितने दिन में करेगा, 10 दिन में कर लेगा. सो आंसर इज सी. द टोटल एमोलमेंट्स ऑफ 2 persons आर द सेम, but one get allowances to the extent of 65% of his basic pay and other gets allowances to the extent of 80% of his basic pay. 80% of his basic pay
The ratio of the basic pay of the former to the basic pay of the later is, total emoluments is same, say x. ये फर्स्ट पर्सन की इनकम x है, सेकंड की y है, तो इसको 65% ऑफ x अलाउंस मिला एंड इसको मिला y प्लस 80% ऑफ y अलाउंस, दोनों इक्वल है टोटल एमोलमेंट्स। तो ये हुआ x प्लस 65 अपॉन 100 ऑफ x और ये हुआ y प्लस 80 अपॉन 100y। एलसीएम लिया तो ये 165, 100 डिनोमिनेटर के कैंसिल हो जाएंगे, 185y। सो दिस विल बी x ऑफ 180y। अब हम रेशियो निकाल सकते हैं, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 180 अपॉन 165। अगर हम 15 से डिवाइड करें तो 15, 32 एंड यहाँ पर हुआ 11, सो 12:11 इज द आंसर, डी इज द आंसर। गोपाल बॉट ए सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट। सो देन राम वांटेड टू सेल इट टू बैक टू गोपाल at 10% loss. What will be Gopal's position if he agreed? So Gopal ने, तो मान लीजिए x कॉस्ट है और 10% ऑफ x इज 0.1x, तो कॉस्ट हो गई x प्लस 0.1x, ये प्रॉफिट हो गया। सो x इंटू 1.1, सो इस पर बेचा उसने, गोपाल ने टू राम। अब राम दोबारा से गोपाल को बेच रहा है 10% लॉस, तो 1.1x का 10% 0.11x ये लॉस है। दिस इज द लॉस फॉर राम व्हेन राम इज सेलिंग इट टू गोपाल को बेच रहा है। और अगर गोपाल एग्री हो जाता है तो बेसिकली क्या थी कॉस्ट, 1.1x माइनस 0.11x, 1.1x माइनस 0.11x। सो जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू आई इतनी 0.99x। इस कॉस्ट पर राम सेल कर रहा है गोपाल को, राम टू गोपाल। और अगर गोपाल एग्री कर जाता है तो उससे क्या हुआ, 0.99 में मिली जिसकी कॉस्ट x थी, तो उसे कितना बचत हुआ, 0.01x का बचत हुआ, विच इज इक्वल टू 1%। तो 1% का गेन हुआ, सी इज द आंसर। द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन दैट ऑफ सी एंड डी टेकन टुगेदर। द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी इज सेम एज दैट ऑफ बी एंड डी टेकन टुगेदर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A plus B is more than C plus D and A and C is the same, A plus C is same as B plus D and A earns half as much as sum of the income B plus D, B plus D by 2 is equal to A। अब यहाँ से ये वेरी क्लियर है कि अगर A है B plus D by 2 तो C भी B प्लस D बाई 2 हो गया। अगर हम A इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो C इज 1 ऑफ B प्लस D माइनस हाफ ऑफ B प्लस D बाई 2, सो B प्लस D बाई 2, हाफ ऑफ B प्लस D, सो दिस गिव्स C इज ऑल्सो B प्लस D बाई 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A प्लस C ये और ये इक्वल है, ये बराबर है B प्लस D, और इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि A तो हो गया C के इक्वल, तो B इज ग्रेटर देन D, B इज ग्रेटर देन D और A इक्वल टू C है। इट मीन्स जब हम इस वाले एक्सप्रेशन में देखते हैं तो A प्लस C जो कि इक्वल है इज इक्वल टू B प्लस D, तो B प्लस D का आधा और उसमें B इज मोर, तो B इज ग्रेटेस्ट, सो B इज द आंसर। If there is a policy that 1/3 of a population of a community has migrated every year from one place to some other place, what is the leftover population of that community
after the 6th year if there is no further growth in the population during this period. 1/3 population of the community is migrating 6th year के बाद. तो मान लीजिए पहली बार 1/3 गई, 1 में से गया तो बची कितनी 2/3. फिर 2/3 का 1/3 ये हो गई 2/9 और ये 2/3 में से 2/9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4/9 बची. तो ये फर्स्ट ईयर था 1/3 चली गई, बची इतनी 2/3. 2/3 का ये दूसरे साल में चली गई, तीसरी साल में 4/9 का 1/3 चली गई. तो ये हो गई इतनी चली गई, कितने में से 4/9 में से. तो इसे हम एक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं या इस तरह से सॉल्व करेंगे ये अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो दिस कम्स 27, 8/27 और उसके बाद 4th ईयर आ गया. 4th ईयर में हो गया दैट 8/27 का 1/3 चली गई और कितने से गई 8/27 माइनस 27 into 3. तो एलसीएम आ गया 27 into 3, 24 minus 8, 16/27 into 3. फिर 5th ईयर में इसका भी 16/9 into 27 इतना हो गया जो चली गई. तो बची कितनी 16/27 into 3 माइनस 16/9 into 27. तो यहाँ हम देखेंगे एलसीएम आ गया 27 into 9 एंड यहाँ हो गया 48 minus 16, 32/27 into 9. ये हो गया 5th ईयर में. अब 6th ईयर आ गया. 6th ईयर में 1/3, 27 into 27 एंड 32. इसमें से 32/27 into 9 में से चली गई 32/27 into 27. तो एलसीएम हुआ 27 into 27 और 96 minus 32 तो ये आया 46/27 स्क्वायर. तो 27 स्क्वायर होगा 729. डी इज द आंसर. लेकिन ये थोड़ा लंबा तरीका हो गया तो हम एक फॉर्मूला याद रखें तो ज्यादा अच्छा होगा. और फॉर्मूला कहता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है कि जब हमें 6th ईयर में निकालनी है पार्ट ऑफ पॉपुलेशन तो सिंपल हमें करना है 1 पॉपुलेशन है उसकी 1/3 घट गई कितने ईयर में 6 ईयर में. सो ये बस निकालना है 1 minus 1/3/6. सो ये कितना आता है 2/3 to the power 6 जो कि आएगा 64/729 और यही आंसर है जो कि डी आंसर है. पर अगर हमें नहीं फॉर्मूला याद है या अंडरस्टैंडिंग है, टाइम तो वैसे एक इशू है, आप नहीं ज़्यादा टाइम लगा सकते लेकिन टाइम बचा एंड यू वांट टू मेक श्योर दैट क्वेश्चन इज करेक्ट तो आप ये प्रोसीजर अपना सकते हैं. दैट क्वेश्चन इज करेक्ट नाउ.